Hello everyone. So today we are going to discuss our chapter fundamental unit of life. So first of all, let's understand that exactly what does this fundamental unit of life means. So if we talk about fundamental, so by the term fundamental we mean the base. The term unit we means a complete structure in itself, or we can say a complete thing. If we are talking about fundamental here, so we can take an example of a stone wall or a wall. Like you know that कि जब भी हमारी एक wall होती है, so it always start building up from a brick. So brick by brick, a whole wall can be made. So just like that, हमारी ये जो यहाँ पे जो नीचे की जो base थी हमारी, we call it the fundamental. We are talking about the base here. Like you know कि जब भी हम कोई जैसे कि हम कोई पिज़्ज़ा बना रहे हैं, right? तो पिज़्ज़ा के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? We take a base, then we add some sauce, and then we add some cheese and other whatever we want to add on the toppings. So exactly क्या अगर मेरे पास base नहीं होगा तो क्या मैं बाकी सारी चीज़ कहाँ add करूँगी? So there will be no sense in that. So exactly like that कि जब हम एक wall यहाँ पे form कर रहे हैं तो हमने क्या किया? We have used a brick here. एंड ये जो ब्रिक है ये खुद में इन इट सेल्फ, ये जो ब्रिक है ये खुद में एक वी कैन से कंप्लीट है. इट्स कंप्लीट इन इट सेल्फ. एंड ये ऐसी खूब सारी ब्रिक्स मिलके हमारी यहाँ पे एक वॉल फॉर्म कर रही है. सो वी कैन से दैट ये जो हमारी यहाँ पे ब्रिक है ये क्या कर रही है? ये हमारा फंडामेंटल जो हमारा बेस है वो तैयार कर रही है. सो फंडामेंटल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस. If we talk about the unit, so as we see in this example, so this brick will be the unit. Unit that means कि brick जो है ये खुद में sufficient है, खुद में complete है. जो एक ये जो हमारी brick है ये क्या है? एक बड़ी चीज़ का एक छोटा हिस्सा है, right? So ये जो बड़ी चीज़ का एक छोटा हिस्सा है but ये खुद में complete है. That's what we call the unit. And of life, that means we are talking about life here. तो life की fundamental unit क्या होती है? We have to talk about that in this chapter. So let's start by looking at the learning concepts. First of all, in this chapter we are going to learn about what are living organisms made up of. First of all, कि living organisms बने किससे हैं? That we are going to know very soon. And what is a cell made up of? Cell किससे बनी है? And what is the structural organization of a cell? Structural organization क्या होता है एक cell का? And the plasma membrane or the cell membrane. Let's see first of all in इसके अंदर फिर हम then we are going to talk about the cell wall, the nucleus, the cytoplasm, and then the cell organelles. In the cell organelles we are going to talk about endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids, vacuoles, and then in the end we are going to talk about cell division. So let's start. First of all, we are going to talk about that exactly what are living organisms made up of. What is the fundamental unit of life? So a fundamental of unit of life is cell. कि जितने भी organisms होते हैं all organisms are made up of cell. जितने भी organisms होंगे वो सब cell से बने हुए होंगे. Cell is the fundamental unit of life. We can see here that cell forms the basic structural and functional unit of life. जिस तरीके से हमारी वो जो brick की wall बन रही थी वो किससे बन रही थी? एक particular एक brick से हमने start किया था. That brick was the unit of the fundamental unit of that particular wall. So वैसे ही हम organisms में क्या होता है? The cell is the fundamental unit of life. एक cell जो खुद में complete है वो क्या करेगी? बहुत सारी cells एक साथ में मिलकर एक हमारी क्या कर रही है? एक organism को form कर रही है. Exactly. So cells combine which make tissues. Now there is one more interesting thing कि cells जो होती है वो combine करती है and form करती है tissues को, which make organ and organs from organ system. Let's understand this by looking at here. Okay. First of all, what is happening is that we are the organisms. We organism, like for example, let's take we human beings. The organism is going to be made up of from organ system. And what are these organ system? The nervous system, right? We can say the nervous system, the digestive system, right? We can take any example here. We have so many organ systems, right?
and these organ systems are further made up of organs. ये जो हमारे organ system होते हैं ये organs से बने होते हैं. Organs we can say like the heart, right, and we can say the brain, etc. Right, so these are the organs, and these organs are further made up of tissues. ये जो organs होंगे वो किससे बने हुए होंगे? Tissues से बने हुए होंगे. And ये जो tissues है वो किससे बने होंगे? Cells से बने हुए होंगे. So this is how an organism is going to be formed. First of all, we have the fundamental unit जो हमारा base है, जो हमारी cell है. Then यहाँ पे हमारे पास में if I say we have tissues here जो cells मिलके form करती है, right? We have some tissues here. सो एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो सेल है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट है, दैट्स अ बेस, वो हमारा बेस है जो कि मिलके क्या बनाएगी? टिश्यूज फॉर्म करेगी. टिश्यूज साथ में मिलके क्या फॉर्म करेंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे. ऑर्गन्स बना और ऑर्गन्स जो है वो सारे एक साथ मिलके क्या फॉर्म करेंगे? ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेंगे. एंड जितने भी ऑर्गन सिस्टम है दे टुगेदर फॉर्म द ऑर्गेनिज्म. एंड दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी एनी प्लांट, कैन बी एनी लिविंग थिंग लाइक अ प्लांट, एनिमल्स, वी ह्यूमन बीइंग्स, राइट? So now let's see. Now let's see the discovery of cell. Exactly cell की discovery कब हुई और किसने की? So while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the shape of honeycomb, consist of little compartments. So here we are talking about the cork. First of all, what is it that we are talking about cork here, which is the like the woody portion of the tree. अगर हम tree को देखेंगे, so tree का ये जो woody portion होता है, we call it the cork, or we can say like the छल जिसको हम हिंदी में कहते हैं, right? So that's the cork. So while examining a thin slice of cork, thin मतलब कि एक पतली सी स्लाइस जब हमने, ये है हमारा cork, जब हमने cork की thin slice ली, एक पतली सी स्लाइस देखी, so that the cork resembled the shape of honeycomb. So जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो शेप थी इस कॉर्क की, जब हमने जूम किया उसको माइक्रोस्कोप पे देखा, सो वो कैसी दिख रही थी? हनीकॉम जैसी. एज यू कैन सी हियर, हनीकॉम जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हमें शो हो रहे हैं जिसको हम देख सकते हैं ऐसे कि वो कुछ ऐसे शो हो रहे हैं. ये जो है द कॉर्क एंड हनीकॉम, एज यू कैन सी हियर, कंसिस्ट ऑफ कंपार्टमेंट्स. सो एग्जैक्टली हुआ ये कि जब जो रॉबर्ट हुक थे, लेट्स टॉक अबाउट हिम फर्स्ट. जो रॉबर्ट हुक थे, here as you can see in 1665, first of all हुक जो थे उन्होंने स्टडी किया था कंपार्टमेंट एंड नेम देम एज सेल्फ. दिस इज रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सबसे पहले खुद का एक उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था, विच इज दिस वन एज यू कैन सी हियर. दिस इज द सेल्फ मेड microscope that Robert Hooke have made. He was the first person to observe that the organisms are made up of some units which we call cell. So here now come back to this. So उन्होंने जब एक कॉर्क की थिन स्लाइस ली अपने खुद के सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप पे उन्होंने जब देखा, so he find out that कि वो जो कॉर्क जो थी उसके जितने भी जो स्लाइसेस थी वो कैसी शो हो रही थी? वो एक हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर जैसी शो हो रही थी, like this as you can see here. Cork is a substance which comes from the bark of tree. So in 1665 रॉबर्ट हुक ने ये स्टडी की थी एंड उन कंपार्टमेंट्स को, वो जो हनीकॉम्ब जैसे कंपार्टमेंट्स हो रहे थे, उनको उन्होंने नाम दिया सेल का. रॉबर्ट हुक ने 1665 में खुद के सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की हेल्प से एक कॉर्क जो थी, जो बाग, जो वुडी पोर्शन होता है ट्री का, उसको क्या किया? एक थिन स्लाइस ली उसकी, एंड उसको जब उन्होंने स्टडी किया तो उनको ये पता चला कि वो एक हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर जैसा शो हो रहा था, लाइक दिस एग्जैक्टली. एंड देन उन्होंने उसको नाम दिया सेल. एग्जैक्टली तब उन्होंने इसको नाम दिया, दीज आर द सेल्स. Now if we see, it was a very small incident but was very important in the history of science. कि ये बहुत ही small incident था but ये बहुत ही ज़्यादा important था history of science में, because this was the first time when a person has studied, or a scientist has studied about that organisms are made up of some several units.
and we call those units cells. Cells was first discovered by Robert Hooke, as I have already told you, which he was observing a slice of cork under a primary microscope. This was the self-made microscope that I told you. रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व करा था कि हम बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, राइट. उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था लुएन हुक. लुएन हुक ने 1665 में एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में डिस्कवर किया. नाउ एक इम्प्रूव्ड लुएन हुक ने 1665 में एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. उन्होंने कुछ फ्री लिविंग सेल्स उन्होंने डिस्कवर की एक पॉन्ड में. पहली बार लुएन हुक ने डिस्कवर की थी. सो वी नीड टू रिमेंबर दिस लाइन टू. इट वाज रॉबर्ट ब्राउन. देन उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट आए. उन्होंने क्या किया, वाज डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. उन्होंने ये बताया कि भाई सेल में तो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट. सो ये उन्होंने न्यूक्लियस बताया था. किसने बताया था इस बारे में? रॉबर्ट ब्राउन ने. दैट उन्होंने डिस्कवर किया दैट न्यूक्लियस ऑफ द सेल. इफ वी टॉक अबाउट पुरकिंजी, उसके बाद में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था पुरकिंजी. उन्होंने 1839 में कॉइन किया एक जेली लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल टू बी प्रोटोप्लाज्म. की जो हमारी सेल होती है, दिस इज अ सेल. इस सेल में एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या कहेंगे, एक जेली लाइक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म. The cell theory. Now let's talk about cell theory, which is very very important. If we talk about the cell theory about that cell is the basic unit of life. Cell theory ये कहती है कि जो हमारी सेल है वो हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की. क्योंकि जैसे हमारी जो पूरी वॉल बन रही थी ब्रिक से, तो एक जो ब्रिक थी हमारी वो क्या थी, हमारी वो जो ब्रिक थी पर्टिकुलर वो हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ थी. उस पर्टिकुलर किसकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ दैट वॉल, उस वॉल की वो पर्टिकुलर फंडामेंटल यूनिट ऑफ वॉल थी. और हमारे इफ़ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में जो सेल होती है दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इन आवर ऑर्गेनिजम्स. वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट शेल्डन एंड श्वान. एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस लाइन दैट कि कौन थे जिन्होंने बायोलॉजिस्ट ने प्रेजेंट की थी सेल थ्योरी. सो द सेल थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय शेल्डन एंड श्वान विच वर इन 1838 एंड 1839. उन्होंने बताया था कि जो सेल थ्योरी होती है उसमें क्या होता है कि दैट अबाउट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ. ये बताया था शेल्डन एंड श्वान ने. एंड दोज वर द बायोलॉजिस्ट. नाउ लेट्स सी. देन विर्चॉफ, एक और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या दिया था थ्योरी. द सेल थ्योरी वाज देन एक्सपेंडेड. देन ये जो सेल थ्योरी जो शेल्डन एंड श्वान ने दी थी ये फर्दर एक्सपेंड की गई 1855 में. जो किसने एक्सपेंड की थी? विर्चॉफ ने एक्सपेंड की थी बाय सजेस्टिंग दैट ऑल द न्यू सेल्स अराइव फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल. कि जो हमारी सेल्स होती है जितनी भी वो सब कहाँ से आई है, ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट करती थी सेल, उनसे ही आई है. सो नाउ लेट्स सी. विर्चॉफ ने बता दिया था कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है. एंड वी नीड टू रिमेंबर दिस एमसीक्यू का क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. नाउ एज यू कैन सी हियर these are so many cells and these cells are forming a tissue here. The thing you are seeing here in this picture, it is a tissue. And this tissue is made up of several cells. As you all can see here, these are cells. ये जो cells है and this is nucleus. And the thing you can see here in the center of these cells, this is called nucleus. The cell of the onion peel. अच्छा, first we will talk about onion peel. हमने क्या किया, onion peel जो है उसकी cell के बारे में we will talk about onion peel cell first. That it will look like it will look the same regardless of the size of the onion they came from. दैट मीन्स हमने क्या किया, एक जो सेल होती है ऑनियन की उस पर हमने स्टडी की एंड देन वी फाइंड आउट दैट कि जो ऑनियन की हमने कोई सी भी अगर जो सेल ली थी उसमें वी फाइंड आउट दैट कि उनका जो शेप होता है, साइज होता है, रिगार्डलेस ऑफ फ्रॉम वेयर एवर पार्ट वी हैव टेकन इट फ्रॉम, देन इट विल बी सेम regardless of the position or the size of the onion they came from. These small structures that we see are the basic building unit of the onion, which onion bulb. ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे these, ये एक onion bulb का एक particular अगर हमने microscope पे देखा, so it will look like this. These are the cells which will look like this and the nucleus which will look like this. These are the basic units of the onion bulb, which are the
cells. These structures are called cells. ये जो हमें structures दिख रहे थे छोटे छोटे, these are the cells. Not only onions, सिर्फ onions में ही नहीं, जितने भी organisms होते हैं हमने उन सब में ही इन cells को observe किया. However, there are also single cells that live on their own. हमने ये observe किया that there are so many different cells which came together and form a particular tissue, and those tissue form organ, and the organs form organ system, and then they form together organisms. But there are some organisms which are a cell in itself, which is a single cell, and we call those organisms the unicellular organism. As you can see here, single cell that live on their own, कि एक single cell भी होती है जो खुद से रह सकती है. Like as you can see here, the bacteria, the paramecium and the chlamydomonas. These organisms are called unicellular organisms. ऐसे organisms जिनमें सिर्फ uni, that means single cell होती है, we call those organisms unicellular. You need to remember this क्योंकि पूरे 9th में आपको ये कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि unicellular organism इनमें से कौन सा है. Then first of all you should know that uni means single, that means we are talking about single cell organisms here. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts. There are so many cells which came together and they will assume to form a single body and assume different functions in it to form various body parts in the multicellular organisms. That means if we are talking about unicellular organism, then there is only one cell. Then there is only one cell which is doing various functions. But if we talk about multicellular organisms, then multi means so many cells that will come together and they will perform a specific function. That's what happen in multicellular organism, that there are so many cells in multicellular organism and they all have their own particular or specific function, as we can say, such as fungi, plant and animals. We all are multicellular organisms, and the unicellular organism would be the bacteria, chlamydomonas, etc. Now let's talk about some organisms can also have cells of different kinds. अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती है, डिफरेंट काइंड्स की सेल्स होती है. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर. एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ स्मूथ मसल सेल. लुक एट द स्ट्रक्चर हियर ऑफ द स्मूथ मसल सेल. यू कैन सी हियर इट इज काइंड ऑफ लाइक दिस, and in the ovum it is a circle. It is and the bone cell, it kind of look like this, which have kind of dendrites here, and the blood cell looks like this, and the sperm cell look like this, and the fat cell also look like in a kind of a circular, and the dendrites, the nerve, it has dendrite and it kind of like a cylindrical structure. So these all are different in structures. But now let's see what are exactly going to be their function. The shape and size of the cells are related to the specific function they perform. अब ये जो हमने बात की थी सेल्स की, जो अलग अलग शेप की है, अब इनका फंक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा. Now see how. जो हमारी nerve cells है, ऐसी there are a million and billions of nerve cells in our mind, in our body, that what they do, they transfer the message in our body. राइट. सो ऐसी खूब सारी सेल्स जो होगी, नर्व सेल्स पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, नर्व सेल्स. तो नर्व सेल्स अपना पर्टिकुलर फंक्शन शो करेगी. जो हमारी यहाँ पे बोन सेल्स है वो नर्व सेल का फंक्शन नहीं कर सकती, बिकॉज बोन सेल्स हैव देयर ओन फंक्शन, राइट, एंड द फैट सेल्स हैव देयर ओन फंक्शन. Now let's talk about here that some cells जैसे कि amoeba have changed shapes. जो amoeba होता है, its cell can change its shape, and each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic to the living forms. That means जितनी भी cells होती है वो सब कुछ ऐसा perform करती है function that की जो एक living form को चाहिए होती है. We know that there is a division of labor in multicellular organisms. हमारे human beings में there are so many organs, there are organ systems and there are so many cells, and we are multicellular organisms. So इतना सारा काम करने के लिए we have so many cells, but these cells are again डिवीजन ऑफ लेबर. दैट मीन्स ये डिवाइडेड है. लाइक जो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट है, जो मेरी नर्व सेल्स है, जो मेरी ब्लड सेल्स है, वो सारी उनका पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन है. दैट मीन्स इस पूरी ह्यूमन बॉडी में
जितनी भी सेल्स होगी उन सबका पर्टिकुलर फंक्शन होगा. डिवीजन ऑफ लेबर, सब ने डिवीजन कर रखा है अपने अपने कि वो क्या क्या काम करेगी, क्या क्या परफॉर्म करेगी फंक्शंस. दिस मीन दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, कि ह्यूमन बॉडी का डिफरेंट पार्ट डिफरेंट फंक्शन करेगा. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पम्प ब्लड. अपने पास में हार्ट में जो ब्लड है उसको पम्प करने के लिए वी हैव अ हार्ट. और स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, स्टमक है हमारे पास में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. एंड अपना हार्ट जो है वो डाइजेशन का काम नहीं कर सकता बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन particular function to do. Similarly, division of labor is also seen with a single cell. अब हम अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें भी हम थोड़ा बहुत डिविजन ऑफ लेबर देख सकते हैं. Each such cell in each such cell has got some certain specific components within it called a cell organelle. जितने भी सेल हमारे पास होती है, हमारी जो सेल होती है एक पर्टिकुलर, as you all can see here, this is a cell. In this cell there will be so many different cell organelles. As you can see here, यहाँ पे हमारी सेल के पास में cell organelles present होंगे. For example, we have Golgi apparatus, we have a vacuole here, we have nucleus here, we have mitochondria. So we have different cell organelles present in a particular cell. Each kind of cell organelle perform a special function. अब ये जो मेरी पर्टिकुलर ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ये खुद का एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे. सच आर एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, जैसे कि इनमें से एक जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा न्यू मटेरियल बनाने के लिए सेल में. क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल, इनमें से एक ऐसी सेल होगी जो कि वेस्ट मटेरियल को क्लियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. एंड नेक्स्ट फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन, एंड देयर आर सो मेनी सेल ऑर्गेनल्स इन द सेल विच आर पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन specific function. A cell is able to live and perform all the functions because of these organelles. एक सेल जो होगी अगर उसमें ऑर्गेनल्स नहीं होंगे तो वो इतने सारे फंक्शंस ही परफॉर्म नहीं कर पाएगी. सो दैट्स व्हाई वी से दैट अ सेल इज एबल टू लिव. वो सेल जिंदा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसको लाइव रखने के लिए. These organelles together constitute the basic unit of life which we call cell, which is the main title of our chapter. Now let's talk about that what is a cell made up of, that exactly cell के अंदर जो organelles है, let's study them now. What is the structural organization of a cell? कि structural organization क्या होता है एक cell का, let's see. If we study a cell under a microscope, अगर हम एक माइक्रोस्कोप के अंदर एक सेल को स्टडी करेंगे then we would come across the three features. हम three features हम ऑब्जर्व करेंगे in almost every cell, कि हर सेल में ये तीन चीज़ें हमको मिलेगी ही मिलेगी. Now what are these three things? Which is plasma membrane, that every cell has plasma membrane, nucleus and cytoplasm. And we will study more cell organelles in detail in brief now. All activities inside the cell and interactions of the cell within its environment are possible due to these features. And ये जितनी भी activities perform करती है cell उसके अंदर के cell organelles की वजह से it happens. Now let's talk about plasma membrane or cell membrane which is present in the cell. As you all can see here, ये cell है. सेल का ये जो आउटर पार्ट जो आपको दिख रहा है दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. एंड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन. तो यू नीड टू नो कि ये दोनों सेम होते हैं, तो किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है. एंड दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर वी कैन से हियर. दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. ये आउटर मोस्ट लेयर होती है ऑफ द सेल. सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट मीन्स दिस विल बी सेल वॉल. वॉल सेल, एंड इसके नाम से ही पता चल रहा है इट इज काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग द सेल, राइट. सो दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. अब हमारी सेल के अंदर वी हैव स्टडीड, वी नो नाउ दैट देयर आर सो मेनी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन अ सेल. सो हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट देम, कि इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा सेल के अंदर. सो दिस सेल वॉल काइंड ऑफ वी कैन से सेपरेट कर देती है बाहर के कॉन्टेंट्स को इन्वायरमेंट के अंदर जो सेल है उससे.
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सो डोंट कंफ्यूज व्हेन एवर आई से सेल वॉल और व्हेन एवर आई से प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो अलाउ करती है, परमिट करती है एंट्री या एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नाम से पता चल रहा है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, कुछ मटेरियल्स को तो अलाउ करेगी अंदर आना एंड कुछ मटेरियल्स को अलाउ नहीं करेगी, लाइक द फॉरेन पार्टिकल्स. It also prevents movement of some other materials, and ये जो हमारी सेल वॉल है, प्लाज्मा वॉल है, ये कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जिनको अंदर आने से प्रिवेंट कर देगी, दैट मीन्स रोक देगी. द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. इसलिए जो हमारी सेल वॉल होती है उसे हम स्पेशली कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. SPM वी नीड टू रिमेंबर दिस. अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है. सो व्हाट इट इज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन. ये सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अंदर परमिट देगी. What will happen if we put an animal cell or plant cell in a solution of sugar or salt in water? क्या होगा जब हम एक सेल को, एनिमल या फिर कोई भी प्लांट सेल को, अगर हम एक शुगर या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे. लेट्स सी. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अब जो हमने अभी समझा कि इट इज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स इट विल ओनली अलाउ few things to enter and few things to go out, right? So we will now explain this further by the term diffusion. Now what is exactly diffusion? So let's see here. It is the spontaneous movement. Diffusion जो होता है वो एक spontaneous movement है, कभी भी हो सकता है, of a substance higher from higher concentration region to a lower concentration region. That means diffusion में हमेशा एक higher concentration से एक lower concentration में ही चीज़ आएगी. Reason जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वी आर टॉकिंग अबाउट हियर मेनली कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन, these are going to be transport or we can say move across that plasma membrane. And one thing is very important कि diffusion process में हो क्या रहा है कि जो हमारी सेल है, like for example this is our cell and ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पे है. अगर यहाँ पे मेरी ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है एंड बाहर मेरा कोई सोल्यूशन, इफ़ आई से एक सोल्यूशन जो है मेरा बाहर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है. सो एज पर दीज लाइन्स वी विल अंडरस्टैंड दिस कि हायर कंसंट्रेशन से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट मीन्स वी कैन लर्न इट बाय दिस कि हाई टू लो हमेशा कोई भी हमारा, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हियर, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी. दैट मीन्स कि जैसे ही मेरे ये सारे सोल्यूशन जो है ये बाहर जाएगा तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन कि ये जो मेरी सेल हो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Let's talk about osmosis now. In osmosis, exactly what happens is the movement of water molecules through plasma membrane are called osmosis. That या फिर we can say diffusion, osmosis diffusion of solvents. That means कि ये हमारी एक सेल है, इस सेल में हमारे पास this is the nucleus, these are the cytoplasm. ये जो पूरे पर्टिकुलर एरिया में है we call it the cytoplasms. And होता ये है exactly कि जो मूवमेंट होगा वाटर का, the movement of water from the movement of water through plasma membrane, plasma membrane के through जो movement होगा water का, we are going to call it the osmosis. Now let's understand this thing. Now exactly हमने ये study किया था that कि what happens, हमने देखा कि कोई भी अगर solution होगा वो हमेशा, हमने डिफ्यूजन में ये देखा कोई भी सोल्यूशन हायर कंसंट्रेशन से हमेशा लोअर कंसंट्रेशन में आएगा, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय दिस एग्जांपल. व्हाट हैपेंस टू अ सेल पुट इन वाटर सोल्यूशन ऑफ शुगर और वाटर. फॉर एग्जांपल हमने कोई भी सेल ली, हमने उस सेल को, वी कैन टेक एनी प्लांट सेल और एनी एनिमल सेल, ओके. फॉर एग्जांपल वी टेकन अ सेल एंड वी पुट इट इनटू अ वाटर सोल्यूशन. हमने उस सेल को क्या किया, एक वाटर सोल्यूशन में डाल दिया हमने, एज यू कैन सी हियर, ऑफ शुगर और सॉल्ट. या तो शुगर ले लो, शुगर सोल्यूशन, या फिर सॉल्ट सोल्यूशन. दैट मीन्स पानी लेकर उसके अंदर शुगर जो है वो मिक्स कर दी, दैट मीन्स शुगर सोल्यूशन, एंड सॉल्ट सोल्यूशन जब हमने पानी में सॉल्ट को मिक्स कर दिया, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन अ salt solution here. This is the salt solution. Now in this salt solution, this is our cell.
Now why this cell is shrinking? Let's understand this by looking at here that we have taken we have taken salt solution, and this is the cell. Okay, this is my cell. Now what is exactly happening is, मैंने कहा कि जो concentration है मेरे solution की cell के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, एंड जो कंसंट्रेशन है मेरे सॉल्ट सॉल्यूशन की बाहर की तरफ वो बहुत कम है. इन दिस केस एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि अगर मेरे सॉल्यूशन में सेल के अंदर तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूशन की एंड बाहर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, उस केस में remember we have read about diffusion, and diffusion what exactly happen is that higher concentration से solution हमेशा lower concentration में जाएगा. that means कि ये जो solution है सेल के अंदर का वो बाहर आ जाएगा. that means कि ये जो सेल है वो shrink हो जाएगी एंड इसके अंदर का जितना भी solution है वो बाहर आ जाएगा. So now you can read this definition. By understanding this concept is known as hypertonic. Hypertonic, that means concentration of solution outside the cell is less. कि बाहर तो concentration cell का क्या है, कम है. सेल के बाहर का कंसंट्रेशन जो अभी हमने एग्जांपल में देखा वो तो कम था, एंड इनसाइड देन द इनसाइड द सेल, दैट मीन्स सेल के अंदर तो कंसंट्रेशन सोल्यूशन का ज़्यादा है एंड सेल के बाहर कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन का है वो कम है. तो ड्यू टू दिस सेल लॉस द वाटर एंड श्रिंक्स. इस रीजन की वजह से क्या होगा, इस रीजन की वजह से ही हमारी जो सेल थी वो श्रिंक हो जा रही थी, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक, रिमेंबर दिस टर्म, डोंट फॉरगेट दिस. सेल में तो हमारी कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है एंड बाहर हमारी जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है कम है. दैट्स ऑल वी कॉल हाइपरटोनिक, जहाँ पे हमारी सेल जो है उसमें से जितना भी सोल्यूशन वो बाहर आ जाएगा एंड फाइनली हमारी जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी क्योंकि सब कुछ उसमें से बाहर आ चुका है. Now let's understand the concept of isotonic solution. Now, first of all, let's see here what is going to happen in this next cell. अब हमारी next cell में ये हो रहा है कि यहाँ पे we have taken a solution like we have taken a solution जहाँ पे बाहर तो बहुत ज़्यादा है कंसंट्रेशन सोल्यूशन की एंड अंदर भी कंसंट्रेशन जो है, और वी कैन से कि हमने अब एक एग्जांपल ऐसा लिया जिसमें बाहर एंड अंदर दोनों में मीडियम कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे बाहर जो सेल है उसका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन एंड जो हमारी पर्टिकुलर सेल है उसके इनसाइड का कंसंट्रेशन सेम है. वी हैव टेकन इक्वल कंसंट्रेशन इन बोथ. उस केस में क्या होगा कि थोड़ा तो बाहर जाएगा थोड़ा अंदर आएगा. दैट मीन्स कि हमारी जो सेल है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट. एंड इसको हम क्या बोलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट हियर. The isotonic solution. Isotonic solution, that means equal concentration we are talking about here. Equal concentration होगी हमारी outside and inside the cell. Due to this cell gain equal amount of water which is loose. कि जितना वाटर वो लूज कर रही है उतना ही वाटर वो क्या कर रही है वापस, जितना लूज कर रही है उतना ही गेन कर रही है वापस, राइट. Now let's understand this third diagram. Here, if you see, we have taken, like I can say, this is a cell and मेरे सेल की कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत कम है एंड बाहर की जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है. इस केस में व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द सेल, इन दिस केस जहाँ पे हमारे सेल के अंदर का सोल्यूशन की कंसंट्रेशन तो बहुत कम है एंड सोल्यूशन कि जो बाहर का जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस केस में हमारी जो सेल है वो और भी ज़्यादा लार्ज होती जाएगी. दैट मीन्स बाहर का जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जितना भी पानी है वो सब अंदर फिल होता जाएगा इसके.
एंड द टर्म यूज फॉर दिस इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर ये जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? ज़्यादा है, एंड सेल के अंदर की कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन टू lower concentration is more than inside of cell. Due to this cell gain water, that means cell बहुत सारा water gain कर लेगी and swell up and maybe burst. ये इतना सारा वाटर एब्जॉर्व कर लेगी कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी साइज़ में, एंड क्या करेगी? बहुत बड़ी हो जाएगी साइज़ में, या फिर बर्स्ट भी हो सकती है in some cases. Now let's talk about the plant cell and the animal cell in brief. First we have plant cell. As you can see here, the both diagrams of plant and animal cell. Let's see that what we can find here. Here we have the plasma membrane that we have just discussed. We also call it the cell membrane. Then we have here the plasma membrane in animal. This is a plant cell and this one is animal cell. Now there is a trick how you distinguish between these two. सीधे ही आपको वैक्यूल दिख रहा है इतना बड़ा, सो जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल में बड़े होते हैं, एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं. एज यू कैन सी है यहाँ पे मुझे आई गेस शो भी नहीं हो रखा है. ओके, सो लेट्स सी प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब प्लांट सेल में हमने देखा वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट और उसके साथ में उसके पास और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है. सो विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग होगी सेल की, प्लांट सेल की, बट उसके साथ में उसके पास में एक रिजिड आउटर कवरिंग भी होगी जिसको हम कहते हैं सेल वॉल. वी नीड टू रिमेंबर दिस कि हम इसको सेल वॉल भी कहते हैं. एंड यू नीड टू नो दिस थिंग टू दैट हमने यहाँ पे ये देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, राइट. एंड यहाँ पे अब हम एक टर्म देख रहे हैं कि सेल वॉल. दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन वी हैव in our plant for the outer covering, but we have also a rigid covering, that means a kind of hard covering in a plant cell which is known as the cell wall. Let's discuss about the cell wall. Now what exactly is cell wall? So cell wall lies outside the plasma membrane. जो हमारी cell wall होगी it lies outside the plasma membrane, that means plasma membrane के बाहर की side पे ये lie करेगी. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. जो प्लांट सेल वॉल है वो मेनली उसमें क्या क्या होगा? इट कंटेन्स सेलुलोज. इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. जो सेल वॉल है उसमें होगा सेलुलोज. रिमेंबर दिस थिंग. सेलुलोज अब होता क्या है? तो सेलुलोज एग्जैक्टली इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट. जो सेलुलोज है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है हमारे प्लांट को. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ वाई? बिकॉज प्लांट जो है इट इज स्टेशनरी, उसको एक जगह पे खड़ा रहना पड़ता है पूरे टाइम पे. दैट्स वाई इट डोंट मूव. दैट्स वाई इट नीड अ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ. When a living plant cell loses water, जब हमारी एक living plant cell lose करेगी water को through osmosis. Osmosis एक जो हमने अभी पढ़ा था, osmosis process से जब हमारा lose हो रहा है water, there is a shrinkage or concentration of the contents of the cell away from the cell wall. That means कि हमारे यहाँ पे shrinkage हो रहा है concentration का. जितने भी content है cell में उन सब का जो cell से क्या हो रहे हैं? cell away from the cell wall. This phenomena is known as प्लाज्मोलाइसिस. इस फिनोमिना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है, एक जब सेल लॉस कर रही है वाटर को थ्रू ऑस्मोसिस, तो एक श्रिंकेज हो रहा है कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन हो रहा है कंटेंट्स का सेल का अवे फ्रॉम द सेल वॉल. दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस. Cell wall permits the cell of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग. अब ये जो सेल वॉल है हाइपोटोनिक, लेट्स रिमेंबर व्हाट वाज हाइपोटोनिक. Here as you can see here the hypotonic solution, this one solution we have, जहाँ पे हमारी सेल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, राइट. उसमें यहाँ पे क्या हो रहा था हाइपोटोनिक में? see here हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा था कि मोर देन इनसाइड ऑफ द सेल, कि हमारे पास में क्या था, अंदर तो कंसंट्रेशन
सोल्यूशन का बहुत कम था सेल में, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन था, तो हायर टू लोअर सारा जो वाटर था वो कौन एब्जॉर्व कर रहा था, सेल एब्जॉर्व कर रहा था। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द सेल वॉल जो हो रही है वो परमिट कर रही है, उसे बर्स्ट होने से बचा रही है सेल वॉल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाइपोटोनिक कंडीशंस में ये बहुत ज़्यादा काम में आ रही है। To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.